These definitions were given to you. Moreover, I explained them with the help of certain solved examples from your book. And after that, we studied measures of variation. The last topic, coefficient of variation, was left, which I have right now covered it. So in case of measures of variations, we covered range, variance, standard deviation, and the coefficient of variation. So these are for each, I mean 4 values, 4 parameters in each. 4 in the measures of central tendencies and 4 values in the measures of variations. So I have selected certain questions from your book, and one I made at my own, this one which is in front of you. So nevertheless, data may be anyone, but you should be able to handle and calculate all the required values. So I have written this question, right? See, 8 major earthquakes had Richter magnitudes shown here. जो ज़लज़ला आता है, जो झटके लगते हैं, तो उसकी क्या शिद्दत होती है रिचटर स्केल के ऊपर. तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं. और अगर लो लेवल का है तो थोड़ा सा उसमें बचत हो जाती है, तो उसमें से झटका महसूस होता है और बिल्डिंग्स की डैमेज नहीं होती. Okay, these 8 values I have written, 6.2, 7.7 बहुत ज़्यादा होता है, 5.4, 7.2, 6.4, 8, 7.2 and 6.5. मैंने इसमें तमाम चीज़ें कवर कर दी हैं. A पार्ट में आपको निकालना है find all the measures of central tendencies, and in part B find all the measures of variations. So nothing is left. यानी 8 values आपने कैलकुलेट करनी है, 8 values, 4 for central tendency and 4 for variations. लेकिन ऊपर मैंने अब देखिए और से नोट कीजिए, this I have written for the ungrouped data. So data is ungrouped, of course. आपको मैंने last time बताया था what is the group data and what is the ungrouped data. The difference is that in case of group data, you will have the classes as well the frequencies. Here you see there are no classes and no frequencies. So this is the ungrouped data. That's why I have mentioned here very clearly that we are finding all these values of central tendencies and the variations for ungrouped data. So you must know the difference. Okay, mean. The first thing you are to calculate in case of measure of central tendency is mean. The simple formula which was discussed last time once I was giving you the definition. Mean is actually what? Whatever the data is given to you, of course, is an ungrouped data, is a small data. You sum up all the values and divide by the total number of values. So summation of all the values is represented by sigma x, and total values in the data is denoted by n. This is I'm talking about a sample. So whatever the values are given to you in the data, you are looking here, you just write them with a plus sign. Plus sign means we are summing up every value. After the summation, you got 54.6. And total values are 8, so n is 8 in the denominator. Dividing this value by 8, we are getting 6.825. So x bar is a symbol for the sample mean, remember. I'm repeating again and again so that it should stick to your minds. X bar किस चीज का symbol है? This is the mean of the sample. And in this case, you have got the value as 6.825. आप सबको राउंड ऑफ करके सिर्फ एक वैल्यू लिखने की आदत है, नो गुड. इन केस ऑफ स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटीज स्पेशली प्रोबेबिलिटी में आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिखा करेंगे मिनिमम. यहाँ चले 3 ले लें या 2 ले लें, बट बेटर 2 से 3 अगर लिया जाए तो अच्छी बात होती है. डोंट बी वेरी ब्रीफ एट द कॉस्ट ऑफ योर क्लैरिटी. तो ज्यादा ब्रीफ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आपके पास कैलकुलेटर से सारा काम करना है, तो लेट इट बी 3 डिजिट्स इवन आफ्टर
तो डेसिमल 2 पे भी हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 6.83 हो जाएगा। नेवरदलेस दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें ब्रेविटी की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग 6 को देखते हैं 0.8 है तो 7 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। 6 को 7 नहीं करना। चलिए, नेक्स्ट वैल्यू इज मीडियन। I told you last time again and again telling that you can't find median without arranging the data in the ascending order of magnitude. अगर आपने ये काम नहीं किया, so surely you are going to commit a mistake and surely you are not going to get your answer. क्या करना है सबसे पहले? ये देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। First value was 6.2. But once you are going to arrange it in the ascending order, you will take the lowest value. Lowest value is 5.4. ठीक है, तो देखिए, I have written 5.4. उसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? 6.2. Then 6.4 here. Then 6.5, 7.2, 7.2, 7.7 and 8. आप देख रहे हैं कि पीछे वाली हर वैल्यू छोटी है, और इधर मुड़े मूव करें राइट पर तो every value is greater than the previous one. This is called the ascending order of magnitude. And in the last case, I explained 2 of the examples. The data may be consisting of even number of values, and the data may be consisting of odd number of values. Had it been containing odd number of values, it will be good. अगर आपके पास डेटा में 9 वैल्यूज हैं, तो 9 में 4 on the left and 4 on the right. मगर पहले आपने क्या करना है? अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर. Then middle value will be your median, odd number. But in case the data is consisting of even number of values, again you have to arrange it in the ascending order. But here you will see there are 2 values which are in the middle of the data. So as this is the case, these are 8 values, 3 on the left, 3 on the right, and in the middle there are 2 values. Select those 2 and take the average of those 2. So median will be the sum divided by 2. This is the way we take the average, 13.7 by 2, and answer is coming to be 6.85. The symbol for the median is X, and over that an equivalence sign. This is sign of equivalence. This was a bar in case of mean, but here a symbol of equivalence for X. Equivalence is the symbol for the median, remember. Okay. This was the second measure of central tendency. Now we switch over for the third one. Third one is mode. Mode, the word has been taken from model. Model is a thing in which there are maximum qualities. Either it is a person or it's an item or say any showpiece. That is a model thing. Okay. So in case of mode, in the data, we see which number is repeated most of the time. If there is only one number which is repeated for most of the times, then select that one. And in that case, we say the data is having only one mode, and so it is known as unimodal. Unimodal. And if you think that there is no value being repeated, सारी value एक एक दफा ही लिखी हुई है, none of the value is being repeated, और या एक से ज़्यादा दफा occur कर रही है, so then in that case you will say there is no mode. Last time मैंने बताया था आपको. And in case एक भी नहीं, 2 या 3 या 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ अकर कर रही हैं, बराबर फ्रीक्वेंसी, यानी अगर मेरे पास 2 है वो 4 दफा कर रहा है, 7 है वो भी 4 दफा कर रहा है, 11 है वो भी 4 दफा कर रहा है, तो कितने मोड हो गए? 3, यानी 2 भी 4 दफा आ गया, 7 भी 4 दफा आ गया, 11 भी 4 दफा कर गया, कोई डाटा है. So in that case we say the data is multimodal.
ठीक है. In this case, our data is unimodal. The most occurring value is 7.2. देखिए, most occurring दो दफा आ गया ना. Look here, 7.2 and again 7. और कोई भी वैल्यू एक से दो दफा नहीं अकर कर रही. एज्यूम कर लेते हैं कि 7.7 भी दो दफा आ जाता, तो दो आपके मोड होते 7.2 और 7.7. ठीक है. इनमें हमने इनका एवरेज नहीं लेना होता, अलग अलग दो मोड हो जाते हैं बस. मगर यहाँ ऐसा नहीं है. Only one mode, the data is unimodal and the value of the mode is 7.2. Next is the mid range. The formula for the mid range is simply MR. You sum up the minimum value with the maximum value and take its average. I mean, divided by 2. My minimum value is 5.4. देख लीजिए, अब ये डाटा आपके सामने अरेंज हुआ है ना. If the lowest value is 5.4, the highest value is 8. I am summing up here. After the summation, you divide it by 2. 13.4 by 2 is 6.7 is the mid range. I'm sure these things are simple, very simple calculations. Just you have to keep in mind the formula and you have to use your calculator accurately. That's it. Data may be anyone. जरूरी नहीं कि यही डेटा आपको दिया जाए एग्जाम में, कुछ चेंज करके मिल जाए. ठीक. So these are called the measures of central tendencies. Any problem to anybody? I have not muted your mics. आप सब सुन रहे हैं. जो मैं पढ़ा दूं बात समझ में आ जाए, कोशिश करें वही क्वेश्चन पूछ कर ले. अब 2 दिन बाद या 4 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या आपके साथ चीज डिस्कस की थी और आप किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं. देयर एंड देन पूछ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है. तो आई थिंक नो डिफिकल्टी इन दिस मच पीस ऑफ मटेरियल. यस एनीबॉडी? बोलिए. क्लियर है सर. हाँ ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर सर. ओके, शाबाश. नाउ आई स्विच यही डाटा ले रहा हूँ और इसमें हम निकालेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएशंस. सी, अभी थोड़ी देर पहले आई टोल्ड यू दैट मेजर्स ऑफ वेरिएशंस कंटेन रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो फर्स्ट पैरामीटर इज सम रेंज. अब जरा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा, मिड रेंज और रेंज में देयर इज अ डिफरेंस. सुनने में तो एक जैसा लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा. तो we लोग, those who are listening my lecture with a keen interest, they will keep in mind the difference also. तो ये नहीं कि इसमें कंफ्यूज होके इधर का फॉर्मूला उधर कर देना है. नाम उसमें भी रेंज आ रहा था, वो मिड रेंज था और ये है रेंज, सिंपली रेंज. थोड़ा सा डिफरेंस भी है फॉर्मूला में. रेंज इज डिनोटेड बाय R, कैपिटल R, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू. दिस इज द फॉर्मूला. कोई मुश्किल नहीं है. My maximum value was 8 on the extreme right side. और जब हमने डेटा को अरेंज किया था मीडियन के लिए, the lowest value was 5.4. तो हमने देखा है, इसको डिफरेंस कर दीजिए and that is your answer. कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है. आपको जब मैंने फास्ट फूड सैंडविचेस का क्वेश्चन कराया था उसमें भी इफ यू रिमेंबर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 57 और मिनिमम वैल्यू क्या थी? 12. याद आ रहे हैं ना? तो हमारा आंसर क्या आ गया था? 45 रेंज में. आई होप इसी तरह ध्यान में रखा करें कि हमने ये माजी में भी पढ़ा है. रेंज तो नई दफा फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे. क्लियर हो गया? अब चलिए वेरिएंस के लिए. सेम डेटा एंड वी आर टू फाइंड द वेरिएंस. वेरिएंस के बहुत सारे फार्मूलाज हैं. कुछ अनग्रुप डेटा के लिए, कुछ ग्रुप डेटा के लिए, कुछ सैंपल के लिए, कुछ पॉपुलेशन के लिए. मैं ये एक ही आपके सामने रख रहा हूँ फॉर्मूला. देखिए, इसको कहते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला. ये आपको मैंने डिस्कस भी किया हुआ है लास्ट टाइम. आपके नोट्स जो है उसको उठा के देखिएगा. फ्रॉम द बुक आई सेंट यू सम पीसेस ऑफ डेफिनेशंस. उसमें ये वेरिएंस की डेफिनेशन. The symbol for variance in case of sample is S square.
एस स्क्वायर आइंदा अगर कहीं मैं लिखूं तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए दैट इज ए सिंबल फॉर द वेरिएंस। अगर इसी का स्क्वायर रूट ले लें तो सिंपली एस बचेगा एंड दैट इज द सिंबल फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो सिंपल है, वेरिएंस पता चल जाए, उसका स्क्वायर रूट लीजिए, दैट यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए फॉर्मूला क्या है, n times sigma x square minus sigma x whole square divided by n into n minus 1। अब अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको, पेपर में भी होता है, बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर वाला n जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये लिखते ही नहीं है। अब आप एक वैल्यू को मिस कर दें, ये छोटी बात तो नहीं है ना, then the whole show will be flopped। आपका आंसर ठीक आ ही नहीं सकता और इसमें कोई रीजन नहीं बनते कि इसको हम क्यों मिस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत होती है और कोई मसला नहीं है। अच्छा आप देखिए, ये मेरा x वैल्यूज थी, ये दो कॉलम मैंने बनाए हैं, वन फॉर x अनदर फॉर x स्क्वायर। अब इसी तरह बना लिया करिएगा, हमेशा अंडरलाइन करें, ये तमाम वो वैल्यूज हैं जो डाटा की दी हुई थी, और ये अरेंज डाटा हमने याद है आपको जो हमने मीडियन के लिए किया था, ये मैंने वही लिख लिया है, कोई हर्ज नहीं है। चाहे ये अरेंज ना भी हो, स्टिल यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर नेवरदलेस। लेकिन अरेंज हो तो आपको पता चल जाता है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, वो सब एक्स्ट्रा नहीं आ रही, तरतीब में सब चल रहा है। ऑल द वैल्यूज व्हिच वी हैव रिटन इन द केस ऑफ मीडियन वो हमने अरेंज करके लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम में यू जस्ट टुक द स्क्वायर वैल्यूज, इन सब का स्क्वायर करता गया, 5.4 का जो स्क्वायर किया तो 29.16 आया, 6.2 को किया इसका ये आया, so on and so forth। 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया, डन। और एंड पे इनकी समेशन लीजिए, ये देखिए सिग्मा किस चीज का सिंबल होता है, यू सम अप ऑल दिस वैल्यूज, सो सिग्मा एक्स इज 6.825, ये गलत हो गया, यहाँ पे सिग्मा एक्स ऐसा नहीं होगा, देखें ये छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये मैंने शायद एवरेज का ले गया था वैल्यू, अभी मुझे एहसास आ रहा है कि पिछले क्वेश्चन में ये देखें, ये जहां हमने मीन निकाला है ना, तो सिग्मा एक्स ऊपर वैल्यू ये लिखे, ये थी सिग्मा एक्स 54.6, तो मैंने शायद ये वाली लिख ली है, आपका सिग्मा एक्स क्या है वो 54.6। ये वैल्यू ठीक कीजिएगा, हियर ये मुझसे कुछ एक मिस्टेक हो गई है, ओके राइट डाउन यहाँ पर आप, अब ऑल ऑफ यू प्लीज, you should have your pencil and notes with you, please note down, क्या वैल्यू लिखेंगे अब आप इसकी जगह, लिखें राइट डाउन 54.6 लिखिए फॉर सिग्मा एक्स, दिस वैल्यू 54.6, दिस इज ओके, ये ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज ऑल राइट, ये आप यहाँ लिख देंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लिखिए 54 पॉइंट जो भी था 6, इसका स्क्वायर लीजिएगा, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके, somebody should calculate and tell me the answers please, निकालिए अभी निकालिए, do you have the calculators with you, of course please, Yes, sir. calculate कीजिए, what answer you are writing for sigma x, tell me, क्या लिखा sigma x की जगह आपने, you write down 54.6 for sigma x, please calculate this value, सर इसका स्क्वायर आ रहा है 54.6 का 2981.16। ठीक है शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे ना इसका, तो फिर ये आ गया कितना आया, बताया आपने, बताएं शाबाश, दोबारा से बताएं, who told me, सर सुब्रजा 2981.16 2981.16, यस सर। ओके शाबाश। देखिए जी,
यहाँ पे इसको आपने रिप्लेस कर दिया and here the value is stored by one of your colleagues, that is now you write down here 2981.16, यही है ना 2981.86, all of you please write down. अब subtract करके बताइए from here. देखिए n की वैल्यू 8 है because total data values are 8, n को 8 रखा और this is the value of sigma x square which we have calculated here. ये आपकी sigma x square वैल्यू 377.78, so multiply किया, you got 3022.24 and here you are getting the value as 2981.16. बताइए इसको 41.08. कितना आया? 41.08. 41.08. सब्ट्रैक्शन के बाद 41.08 सब्ट्रैक्शन के Yes, बाद sir. आया और नीचे 41 point. जी सर. 41.08 और डिवाइड करेंगे किससे? 5. 56 से ना. देखिए n कितना है आपके जी पास? सर 56 से. Data values are total data values are 8, so 8 minus 1 is 7, 7 into 8, 8 7 the 56. Okay. सर 0.7335 आ रहा है. 41.08 divided by 56 is how much? 0.7335. 0.7335. Okay, then you have to take its percentage. ये तो आ गया ना s square की वैल्यू. इसकी वैल्यू आई s square की, लिखें s square is equal to 0.7335. This is the variance. एक आंसर हो गया आपको. And how do we take the standard deviation? You simply take its positive square root. अब यहाँ पर आपका आंसर बना है 0.7335. Okay. Standard deviation, the positive square root of the variance is called the standard deviation, s under root s square. और अब आपका यहाँ पे जो आंसर आ रहा है अंडर रूट के अंदर आप लिखेंगे 0.7335. राइट नाउ here 0.7335 and after taking the square root how much are you getting? square root के बाद क्या आंसर आया इसका? Somebody should take the square root of 0.7335. नहीं निकल रहा? Sir, 0.8546. अंडर रूट के बाद जो आंसर आ रहा है Yes, sir. 0.8546. 46. ठीक है. This is the standard deviation. दो तीन चीजें हो गई ना आपके. Range you calculated, variance you calculated, standard deviation you calculated. Now we switch over to find the coefficient of variation. अब s की वैल्यू आपके पास जो आई है that is 0.8546. यहाँ पर ठीक कीजिएगा. Here the value of s you will write as 0.8546. Please write down. And divided by x bar. X bar is same 6.825 is okay. ये ठीक है. Numerator you do the correction 0.8546 and then you divide it by 6.85. 6.825. Who is going to tell me the answer? Sir, 0.1252 डिवीजन का आंसर है सर. हाँ, डिवाइड करने के बाद what answer you are getting? 0.12516. Okay. Then you have to multiply it with 100 to get its percentage. तो क्या बन जाएगा? 12.526, right? क्या आंसर आ गया? Okay, after getting this ratio, multiplied with 100. 12.5216. Okay, listen. 12.5216%. Then you also mention this sign of percentage. Yes, This sir. is your coefficient of variation. ठीक है, आप सब इसको ठीक कर लीजिएगा. I'll do it in my notes also. So central tendencies and coefficient of variation both are clear to you? Anybody? कोई problem Yes, किसी sir. को? Any problem to anybody? अगर इस तरह का question comes to you in your paper, I am sure you can do it. Okay? Yes, सर sir. मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का समझ नहीं आया. Standard deviation under root ले लें
वेरिएंस सर आपने जो वेरिएंस निकलवाया है, रेंज के बाद जो वेरिएंस है सर, उसमें जो एस स्क्वायर इज इक्वल टू एन और समीशन एक्स स्क्वायर, सर तो समीशन एक्स स्क्वायर की जगह पे वही वैल्यू लिखेंगे ना 54.6 जो आपने कही थी। नो 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 नो, गलत कर रही हैं आप। देखिए वापस आइए, आई एम सर बैक। देखिए ये है कॉलम, सेकंड कॉलम आपने नहीं बनाया था, सर ये बनाया था। ये एक्स के ऊपर नजर आ रहा है, यस सर। ये एक्स स्क्वायर के सारे कॉलम है, हर इंडिविजुअल वैल्यू को स्क्वायर किया हमने। इसको जब सम अप करेंगे तो ये कहलाता है समेशन एक्स स्क्वायर। ओके सर ओके। सम ऑफ द स्क्वायर्ड वैल्यूज है, ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड है, इसका हमने स्क्वायर नहीं लेना। आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर एक्स के ऊपर है और यहाँ पे स्क्वायर पूरी ब्रैकेट के बाहर है, यानी सिग्मा का स्क्वायर लिया जा रहा है और यहाँ स्क्वायर्ड वैल्यूज का सिग्मा लिया जा रहा है। इसको पढ़ते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स और इसको पढ़ते हैं सम ऑफ द एक्स वैल्यूज एंड स्क्वायर ऑफ दैट। सही है सर, ठीक है जी सर, थैंक यू। ये स्क्वायर ऑफ द सम है और ये सम ऑफ द स्क्वायर है। ओके सर। बहुत फर्क है और ये दो कॉलम्स आपको खुद बता रहे हैं, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। Anybody else is having any query, any problem? नहीं। So this is all what we did, the measures of the center tendencies and the variations as far as our ungrouped data was concerned. The same we are going to discuss for the group data. अब आप स्विच ओवर करते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ग्रुप डेटा के लिए, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालते हैं और एक और क्वेश्चन आपके बुक से उठा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए हाउ डू वी मेक दी कॉलम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, फिर कैसे फर्दर कॉलम्स हमें चाहिए होते हैं इन केस ऑफ द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर गलती लोग करते हैं। अफसोस तो ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन सब ठीक जा रही होती पर एंड पे जाकर आप बस क्या करते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि पहले हमने ऊपर वाली वैल्यूज ऐड करनी है या पहले फ्रैक्शन निकालना है। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, लिसन केयरफुली। 5 + 3/4, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा ऑल ऑफ यू। 3/4 डेसिमल में So how much? 5 + 3/4 क्या आंसर आएगा? 5.75। शाबाश, 5.75, क्योंकि 3/4 जो होता है वो 0.75 होता है। डन है ना। अब गलती आप लोग क्या करते हैं मेजॉरिटी, कि वो लकीर जो 3 और 4 के दरमियान में थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और 5 को उसके ऊपर लिख दिया। अब लकीर कहाँ आ गई? 5 + 3 और टोटल दोनों के नीचे आपने क्या लिखा? 4। तो 5 + 3 क्या बन गया? 8। 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या आंसर आया? 2। जबकि सही आंसर क्या है? 5.75। तो देखिए, just extending a line unnecessarily to some other value, it leads to a big problem. हो गया ना अब आपके साथ ये प्रॉब्लम। ये मैं चाहता हूँ कि बच्चे नहीं करें ऐसी हरकतें, गलत करते हैं आप लोग और नहीं देखते कि ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही, कहाँ खत्म हो रही है। ये कुछ आप लोग वहां भी करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, तो -b + -√b² - 4ac/2a। तो लकीर पूरे के लिए everything which is written in the numerator, the line is covering the whole value. मगर I have seen even students बहुत सारे जो इस लेवल पे भी आ जाते हैं तो -b को बाहर लिख दिया और +√b² - 4ac के नीचे 2a लिख रहे हैं। अब 2a की ऊपर लकीर है वो छोटी कर दिया आपने, जबकि वो लकीर -b को भी कवर करनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे से बेटर हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि इतना केयरफुल एटीट्यूड क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स को कि वेयर टू ड्रॉ द लाइन और वेयर नॉट टू ड्रॉ द लाइन। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी है, अगर आपने लाइन को बिग कर दिया और 5 को उसके नीचे भी ड्रॉ कर दिया तो 5 + 3 बन गया 8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर हो गया 2, विच इज ए रॉन्ग आंसर। जबकि मेरा क्वेश्चन क्या था, 5 अलग है प्लस 3/4 है, तो 3/4 को फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लीजिए। 3/4 फ्रैक्शन विल बी गिविंग यू द आंसर एज 0.75।
उसको फिर बाद में ऐड कीजिए। होल नंबर तो है ही, आसान है ऐड करना, बट फ्रैक्शन नंबर पहले आप सॉल्व किया करें। तो रिमेंबर, मैं अभी जो बात बता रहा हूँ, दैट इन फ्यूचर ऑल्सो बहुत से आपके पास यही होगा, एक वैल्यू बिल्कुल होल नंबर की अलग होगी, ये इवन डेसिमल में भी है तो अलग होगी, लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं तो यू बेटर सॉल्व दोज फ्रैक्शनल पोर्शन फर्स्ट, देन गेट वन नंबर, फिर आप उस दूसरे अकेले एक नंबर में ऐड कर दीजिए। ट्राई योर बेस्ट कि इसमें ये गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे। ये छोटी छोटी मैटर होती है, बट होता क्या है कि आपका पूरा सवाल खराब हो गया। हालांकि इतनी बड़ी ये बात नहीं होती है। और अच्छा चलिए, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो इस में भी है 7 मिनट्स है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, और आज मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दूंगा, आप सब मेरे सामने बैठ के करेंगे, एंड ऑल ऑफ यू बी टेलिंग मी। मैं हर एक से पूछूंगा और आप अपना अपना आंसर शो कीजिएगा। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस जब मेरे साथ बैठ के करेंगे ना, तो दिस विल बी मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर। बाकी तो घर के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। ओके, स्विचिंग ओवर टू ऑल दीज मेजर्स फॉर द ग्रुप डेटा। अब आ जाए ग्रुप डेटा की तरफ। अच्छा, ये सेशन जब खत्म हो जाए, ये सेकंड सेशन है, और अभी हमारे पास 6 मिनट रहते हैं बाकी, तो इसके बाद हम फिर ब्रेक कर लेंगे। सो विल गो फॉर, लेकिन नमाज भी आएगी, ठीक है, नहीं 6-7 मिनट के बाद हो, या ऐसा करते हैं कि हम कंटिन्यू रखते हैं, दोबारा आपको लॉग इन कर लीजिएगा, तो बीच में हम फिर जैसी अजान होगी तो गो फॉर द प्रेयर ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अभी कंटिन्यू रखते हैं। नाउ स्विचिंग ओवर टू अनदर क्वेश्चन। अब मैं इन्हीं चीजों को दोबारा ले रहा हूँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड मेजर्स ऑफ वेरिएशंस, बट फॉर द ग्रुप डेटा। And I have selected one of the questions from your exercise is 3.1 and question number 18. देखिए, इस पे लिखा हुआ है net worth of corporations. These data represent the net worth in millions of dollars of 45 national corporations. The class limits are given. ये सारा क्वेश्चन आपको पेपर में दिया होगा। Class limit is 10 to 20, to 21 to 31A, and so on and so forth. You see there are 6 classes and these are the frequencies. ऐसे डेटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा। I told you, जहाँ क्लासेस अवेलेबल हो और जहाँ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल। आपने पिछला डेटा देखा था, वो अर्थक्वेक्स के बारे में था, रिचर्ड स्केल पे उसके लेवल क्या था, 7.2, 7.6, 7.7, 8, यही था ना। उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी, तो दैट वाज द अनग्रुप डेटा एंड दिस इज द ग्रुप डेटा। पास लोग सब कुछ पढ़ने के बाद 1 महीने के बाद मुझसे पूछेंगे, सर वो ग्रुप डेटा की पहचान क्या है? यही पहचान है जो आपके सामने नजर आ रही है। बाकी होती है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ते, जब टीचर बता रहा होता है तो उसकी बात को गौर से नहीं सुनते। इन ग्रुप डेटा यू विल बी हैविंग द क्लासेस, क्लास लिमिट्स एज वेल फ्रीक्वेंसीज। अब मेरा क्वेश्चन, मैंने ये जो इसमें ऐड किया है, ये डेटा तो मैंने आपके बुक से उठा लिया, बट दिस फाइंड ऑल द मेजर सेंट्रल टेंडेंसीज, ये उस बुक में नहीं था, ये मैंने खुद लिखा है आपके लिए। वो अगर वो कहेगा मीन निकालें या मोड निकालें, तो मैं तो आप सारी चीजें मांग रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए फॉर एवरीथिंग। चलिए, द गिवन टेबल में बी एक्सटेंडेड विद द रिक्वायर्ड कॉलम्स एज फॉलोज। देखिए, इसमें आपके पास सिर्फ 2 कॉलम्स दिए हुए थे, कौन कौन से? द क्लास लिमिट वाज गिवन एंड द फ्रीक्वेंसी वाज गिवन। नाउ यू आर एक्सटेंडिंग these 2 columns into 6 columns। याद रखिएगा, 2 columns को हमने 6 columns में करना है जब हम क्या निकाल रहे हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज।
और अगर यही सवाल मेरा सेंट्रल टेंडेंसी की बजाय ये होता है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ वेरिएशंस, तो ये 6 की बजाय फिर हम 8 कॉलम्स बनाएंगे। और से याद रखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी में आपने 6 कॉलम्स की टेबल बनानी है जो रिक्वायर्ड होगी, और मेजर्स ऑफ वेरिएशंस में 8 कॉलम्स की, 8 EIGHT, रिपीट। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। इसलिए मैंने अलग अलग दो क्वेश्चंस ले लिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ हमने 6 कॉलम से अपना काम चला लिया। वी फाउंड all the measures of central tendencies, but in case of measures of variations you will be needing 8 columns table। इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, वो बताता हूँ मैं कौन से 2। अब देखिए हम कैसे बना रहे हैं। that class limit this is given to you, ये जो आपके पास दिया हुआ है आपको डाटा में, this is your class limit। I told you how to find the class boundaries, that you subtract 0.5 from the lower limit। जो लेफ्ट पे लिमिट्स लिखी हैं ये लोअर लिमिट कहलाती हैं, जो राइट पे लिखी हैं ये अपर लिमिट्स कहलाती हैं। Subtract 0.5 from the lower limit and add 0.5 in the upper limits in each class। हर क्लास में ये काम करना है। अब देख रहे हैं 9.5 और ये हो गया 20.5। ये तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20.5 एंड दिस विल बिकम 31. इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 31.5 और ये 42 एंड सो एंड सो फोर्थ। बन गए तमाम कॉलम्स। तो ये क्लास लिमिट्स दी हुई थी, क्लास बाउंड्री हमने बना ली। फ्रीक्वेंसी वाज आल्सो गिवन, आप चेक कर ले। देखिए ये 2, 8, 15, 7, 10, 3 ये लिखा है ना हमने, 2, 8, 15, 7, 10, 3। इसके बाद आप निकालेंगे एक मिड पॉइंट्स। यस, दिस कॉलम इज नॉट गिवन टू यू, दैट यू हैव टू कैलकुलेट एट योर ओन। हाउ डू वी गेट दिस मिड पॉइंट्स? लेट मी टेल यू द मेथड। द मेथड इज यू जस्ट सम अप द क्लास लिमिट्स। हर क्लास की दोनों अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज ले लीजिए उसको। इन 10 और 20 इसको ऐड किया तो ये बन गया 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। और वैसे भी आप देखें 15 इज मिडवे फ्रॉम 10 to 20। 10 और 20 के दरमियान आता है ना ये, इसीलिए इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। सिमिलरली ऐड दिस टू 21 to 31, this will become 52. 52 divided by 2 gives you 26.